TNN TV کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور ملائیشیا کی جانب سے مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ شہر کراچی میں فائرنگ کے 2 واقعات میں 3 افراد جاں بحق، مذہبی رہنما بال بال بچ گئے۔ نیوزی لینڈ کی فضا میں اللہ اکبر کی گونج۔ سانحہ نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والے بھائی ذیشان احمد نے میری بہت اچھی پرورش کی، بہن مریم گل۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جنگلات کا عالمی دن منایا گیا۔ مریم نواز کی کل جیل کے باہر دھرنا دینے کی دھمکی۔ ٹورنٹو میں برف باری کا امکان۔ ہاؤس آف کامنز میں چاکلیٹ کھانے پر کینیڈین وزیر اعظم کی معافی۔ سسکیچوان حکومت کا اعضاء عطیہ کرنے کے لیے رجسٹری تشکیل دینے کا فیصلہ۔ افریقہ میں سائیکلون سے 500 افراد ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور ملائیشیا کی جانب سے مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور ملائیشین وزیر اعظم کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور ملائیشیا کی جانب سے مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور ملائیشین وزیر اعظم کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن انسانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مہاتیر محمد نے کہا بدعنوانی کے خاتمے کے لیے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کے دورے پر بہت خوشی ہے۔ ملائیشیا کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار تعلقات رہے۔ ملائیشیا ہمیشہ مسلم ممالک کے لیے رول ماڈل رہا۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد کو مسلمانوں کی قائد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اسلام فوبیا نے مسلم امہ کو نقصان پہنچایا۔ اسلام فوبیا کے نتیجے میں مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کو نقصان پہنچا۔ نیوزی لینڈ میں دہشت گرد نے معصوموں کی ہلاکتوں پر ویڈیو بنائی۔ سفاق قاتل کو اپنے فعل پر ذرا بھی شرمندگی نہ تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا ملائیشیا کے وزیر اعظم سے بہت سے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ Reflected in this Christchurch killing where a man brazenly, a terrorist, filmed shooting innocent women and children and innocent people in a mosque, and then didn't regret it. And this is because of the Islamophobia which has, especially since 9/11, has spread. And so we in the Muslim world have been watching you take stands, speak out for what were causes affecting the Muslims. And of course, Prime Minister, we have been watching your stand against corruption. You have presented me a book on corruption, which I look forward to reading. But my party started a campaign 22 years ago against corruption. We actually believe that countries are not poor, corruption makes them poor. Corruption is what destroys state institutions. Corruption is what takes away money which should be spent on human beings. It takes away that money and it is siphoned off by corrupt elites, money laundered abroad, and therefore they impoverish the country by destroying state institutions and diverting money from human development. And I know that you came back. حکومت میں آنے کے بعد سرمایہ کاری پر فوکس ہے۔ مہاتیر محمد نے قائدانہ صلاحیتوں سے ملائیشیا کو مشکلات سے نکالا۔ سیاحتی فروغ پر بھی ڈاکٹر مہاتیر محمد سے بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا تھا پاکستان میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے خوشگوار تعلقات کے معیشت پر مثبت اثرات ہوں گے۔ دونوں اطراف سے تاجر سرمایہ کے لیے راستے تلاش کریں گے۔ کرپشن کے اثرات ہمیشہ بہت تباہ کن ہوتے ہیں۔ بدعنوانی کا خاتمہ انتہائی اہم ہے۔ اس وقت
वक्त एक भी मुस्लिम मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं, दूसरे मुस्लिम ममालिक को भी अपनी तरक्की पर तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड में 9 पाकिस्तानी और मलेशिया के 3 शहरी शहीद हुए। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए दीगर रास्ते तलाश करने होंगे, लोगों के दिमाग और दिल जीतने होंगे। हमले के जवाब में हमला कोई हल नहीं, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काविशें करना होंगी। We have had bilateral discussions on very substantial issues affecting Pakistan and Malaysia, and also the rest of the world, in particular the Muslim world. We have identified many areas where we can enhance our relationship with Pakistan to the betterment of both our countries. No doubt that if we increase our trade with each other, we will have benefited much in growing our economies. Today, everyone is focused on growing the economy. It is necessary that we have some wealth of our own in order to be able to function well as nations and also as players in the international forum. We believe that trade between us will increase because we now have outlined the measures that we should take in order to improve our trade. We need to identify what you can sell to us and what we can sell to you. शहर कराची में आधे घंटे के दौरान फायरिंग के 2 वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि एक मजहबी रहनुमा बाल बाल बच गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शहर कराची में आधे घंटे के दौरान फायरिंग के 2 वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि एक मजहबी रहनुमा बाल बाल बच गए। कराची के इलाके नीपा पुल के करीब नामालूम मुलजिमान की गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। पुलिस और रेंजर्स ने फायरिंग की जगह को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं, जबकि फायरिंग के दूसरे वाक़े में नामालूम मुसल्लम मुलजिमान की जानिब से शहरा फैसल पर नर्सरी के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। फायरिंग के वाक़े में मुफ्ती तकी उस्मानी बाल बाल बच गए जबकि उनका मुहाफिज जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जो आई विटनेस यहाँ पे बता रहे हैं कि गाड़ी के अंदर अगली सीटों पे बैठे हुए 2 अशखास को जो है वो टारगेट किया गया और एक ही समझ से फायरिंग की गई है। मोटरसाइकिल सवार हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, उन्होंने फायरिंग की है और गाड़ी आके फिर यहाँ पे एक जूस का ठेला है उसमें आके टकराई है और गाड़ी यहाँ पे रुक गई है। मौके से हमने एविडेंस लिए हैं और फिंगरप्रिंट्स के लिए फॉरेंसिक यूनिट को हमने कॉल किया है। 9mm के 9 कॉल हमें मिले हैं जिसकी फॉरेंसिक हम करा रहे हैं और CCTV फुटेजेस वगैरह लेके और इसमें जो पेशरफ्त होगी वो आगे आपको बताई जाएगी। कुछ बात करेंगे मसाजिद में दहशतगर्द हमलों के बाद न्यूजीलैंड में पहली नमाज जुमा अदा कर दी गई। जुमे की अजान सरकारी TV पर बराह रास्त नशर हुई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मसाजिद में दहशतगर्द हमलों के बाद न्यूजीलैंड में पहली नमाज जुमा अदा कर दी गई। जुमे की अजान सरकारी TV पर बराह रास्त नशर हुई। तफसीलात के मुताबिक सानिया क्राइस्ट चर्च के बाद न्यूजीलैंड में पहली नमाज जुमा मसाजिद अल नूर के सामने अदा कर दी गई। जुमे की अजान के बाद शोहदा की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जुमे की अजान बराह रास्त सरकारी TV पर नशर हुई। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंड्रा आर्डर्न भी इज़हार यकजहती के लिए नमाज जुमा के इज्तिमा में मौजूद रहीं। सैकड़ों मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा की। इस मौके पर दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और मुसलमानों से अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। क्राइस्ट चर्च में हजारों अफराद हैगले पार्क में जुमे की नमाज के लिए जमा हुए। ये पार्क अल नूर मस्जिद के सामने है जहां गुज़िश्ता रोज जुमे को एक दहशतगर्द की फायरिंग का मुतादिद नमाजी निशाना बने। दहशतगर्द ने 2 मसाजिद पर हमला किया जिसमें 50 अफराद की शहादतें हुई। हैगले पार्क में जब जुमे की अजान और खुतबा दिया गया तो TV और रेडियो पर बराह रास्त नशर किया गया, जो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुआ, जिसके बाद 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पार्क में न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंड्रा आर्डर्न भी मुसलमानों से मिसाली यकजहती के लिए स्कार्फ पहने मौजूद थीं। जसिंड्रा आर्डर्न ने अपने खिताब में हदीस नबवी बयान की और कहा कि हम एक हैं, मुसलमानों के गम में बराबर के शरीक हैं, सारा न्यूजीलैंड गमज़दा है। इससे कबल खुतबा जुमा में खतीब ने कहा कि ये दहशतगर्द ने हमें तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन हम शिकस्ता दिल होने के बावजूद टूटे नहीं बल्कि मुत्तहिद हैं, पुरअज़्म हैं और किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमें तकसीम करे। उनका कहना था कि जो लोग जान से गए वो आम नहीं, आपकी शहादत न्यूजीलैंड के लिए नई जिंदगी है।
हमारी यकजहती की अलामत है। खतीब ने न्यूजीलैंड के लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया, खास तौर पर वजीर आजम न्यूजीलैंड का जो स्कार्फ बांध कर यकजहती के लिए मौजूद थीं। उनका मजीद कहना था, इस्लामोफोबिया एक टारगेटेड मुहिम है ताकि मुसलमानों को खौफजदा किया जाए। 50 अफराद की शहादत रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये बाज बुजुर्गों और चंद मीडिया हाउसेस की मुसलसल मुहिम का नतीजा है। दहशतगर्दी की कोई नस्ल, रंग या मजहब नहीं होता। दहशतगर्दी आलमी तौर पर खतरा है और उससे निमटना होगा। आखिर में उन्होंने मुसलमानों, न्यूजीलैंड और दुनिया भर के लिए अमन सलामती की दुआ मांगी। साने न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले ज़िशान अहमद की बहन मरियम गुल ने खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि हमारी बहुत मुख्तसर सी फैमिली थी। भाई ज़िशान अहमद मेरी पैदाइश पर बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी परवरिश की, होश संभाला तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सानेहा न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले ज़िशान अहमद की बहन मरियम गुल ने खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि हमारी बहुत मुख्तसर सी फैमिली थी। भाई ज़िशान अहमद 10 मई 1980 में पैदा हुए थे। मुझसे 7 साल बड़े थे। मेरी पैदाइश पर भाई बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी परवरिश की, होश संभाला तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया। हमारी बहुत मुख्तसर सी फैमिली है, अम्मी अब्बू और हम 2 बहन भाई। भाई 1980 में पैदा हुए थे, 10 मई 1980 में, और मुझसे 7 साल बड़े हैं। 7 साल बाद 1987 में मैं पैदा हुई, और जब पैदा हुई तो भाई सब बहुत खुश थे कि एक नया बेबी घर में आया है, और बहुत ज़्यादा अम्मी बताती हैं कि वो हैप्पी थे और उन्होंने मेरी बहुत केयर की। अम्मी अगर इधर उधर होती थी तो पीछे वही झूला झुला के सुलाना, और कपड़े इस्त्री करके छोटी बुन्नी के रख देना, फिर उसके साथ खेलना। फिर मैं ज़रा बड़ी हुई तो पढ़ाते भी हुई थे मुझे। वो बहुत मेहनती थे क्योंकि मेरी वालदा ने उन पर बहुत मेहनत की थी। उन्होंने मेरिट पर एनईडी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मास्टर किया और पाक सुजुकी कंपनी में मैनेजर के ओहदे पर फाइज हुए। मरियम गुल ने ये भी बताया कि भाई ने मैनेजर के ओहदे से इस्तीफा दिया और गाड़ी बेचकर न्यूजीलैंड जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड बहुत पसंद था। अक्सर कहते थे, न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत मुल्क है, वहाँ पर अमन है, हर चीज कानून के मुताबिक है, वहाँ जाकर अपना ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। मैंने ना जाने का उनसे इसरार किया था, ताहम वो कहने लगे कि जाकर देखते हैं। जब वो वहाँ गए तो उनका वापस आने का इरादा नहीं था। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, क्योंकि अम्मी का एक तरह से मिशन था कि 2 बच्चे हैं और उन दोनों को मैंने किसी आला तालीमी ओहदे तक, किसी मुकाम तक पहुँचाना है। और उस सिलसिले में अम्मी ने बहुत मेहनत की, भाई के ऊपर भी बहुत मेहनत की। भाई ख़ुद भी अच्छा पढ़ते थे माशाल्लाह। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मेरिट पर एनईडी यूनिवर्सिटी से, वहीं से मास्टर्स किया, साथ में जॉब करते रहे, शाम में इवनिंग में मास्टर्स किया, और इसके अलावा पाक सुजुकी कंपनी में वो माशाल्लाह मैनेजर रहे। काफ़ी अरसा वहाँ पे सर्व किया, अच्छी जॉब पे, अच्छी पोस्ट पे, अच्छे तरीके से रहे। मुझे भी उन्होंने काफ़ी पढ़ाया, तो मैंने भी उनके पीछे पीछे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली, मास्टर्स कर लिया। लेकिन मैंने टीचिंग को प्रोफेशन के तौर पे चुना और एनईडी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर ही सर्व कर रही थी। उन्होंने जनवरी में अम्मी अब्बू को विजिट वीजे पर बुलवाया। उन्होंने चंद दिन ही गुजरे थे कि क्राइस्ट चर्च के इलाके में घर लिया, जहां पर ये वाकया रोनुमा हुआ। ये यहाँ पे सेटल होऊंगा, वो यही चाहते थे कि मैं वहीं सेटल हूँ और अम्मी अब्बू को भी ले जाऊँ। तो अभी तक अम्मी अब्बू नहीं गए थे। इस साल जनवरी में उन्होंने जब विज़िट किया हुआ था पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग भी आइएगा। अम्मी अब्बू फर्स्ट टाइम विज़िट वीज़े पे गए, और अभी उनको वहाँ पे क्राइस्ट चर्च में ही घर लिए हुए शायद 20 दिन ही हुए थे, उस इलाके के पास जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, मस्जिद अन-नूर में। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।